Shri Ram Associate Advocates. Mr. Rangras is having the practice on all the fields and remained as an advocate of several institutes like Gujarat Electricity Board (GEB), Indian Government Mint, Canara Bank, United India Insurance Company, the Oriental Insurance Company Limited, Bajaj Allianz General Insurance Company also. Appeared as and considered various cases against the designated senior advocates such as read petition like habeas corpus, writ of mandamus, regular civil appeal, and special criminal application, criminal miscellaneous application also. He also appeared in various electronic media like VTV, Mantavya News, Rizwa News, etc. on various social and legal issues. Sir, I heartily welcome you on behalf of my institute, and sir, I request you to conduct your session. Thanks, sir. Thank you very much for your noble and kind words, Mr. Maharishi. पहले तो सबसे पहले मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ, माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, मेरे आदरणीय माता पिता को प्रणाम करके वेबिनार की शुरुआत करना चाहूँगा. First of all, regarding my webinar, I would thanks to Ananya Institute of Commerce and Law for a wonderful venture. I want to thank Mr. Atul K. Patel, MD of KIRC Campus, Dr. Chetan Vora, Executive Chairman of KIRC Campus, Dr. J.S. Daxini, Principal Ananya Institute of Commerce and Law, my dear friend Dr. Ankit Ramiji, and none other than Maharishi Thakur, Assistant Professor. And I feel in my duty if I will not thanks to organizing committee who is behind the curtain for the wonderful venture of today, that is Dr. Dakshaben Parmar, Assistant Professor, Mr. Nisarg Upadhyay, Assistant Professor, and none other than Mr. Maharishi Thakur, Assistant Professor. And I will really thanks to my learned friend Mr. Karthike Paneri, my brother Gaurav Bhatnagar for a wonderful speech, and I want to extend my thanks to all my dear colleagues, esteemed friends, and a generation who is going to be a very good advocate in future. Now, the topic of today, which is really very near to my heart, how to be eminent advocate and what are the qualities of the advocate. I am extremely grateful and delighted to extend my thoughts on this topic. Reason being, this is very touching to my heart. If the advocate is not having the qualities of good advocate, he will never be a good or eminent advocate. An advocate must carry some qualities. और जैसे कि मुझे पहले अंकित सर ने डिस्ट्रिक्ट जोन में रख दिया था कि प्लीज आप हिंदी में ही आज का वेबिनार रखेंगे, तो मैं अपनी मर्यादा जानता हूं, और अगर आखिर में मुझे रखा है तो मैं यही समझूंगा कि जो शेष है वही विशेष है. तो हिंदी में आ जाते हैं हमारे वेबिनार के जो इश्यूज है. तो पहले तो मैं कार्तिक जी से एकदम सहमत हूं. उन्होंने जो उनके विचार रखे एकदम सही है. ऑलमोस्ट उन्होंने हर चीज को कवर अप किया. बहुत ही बारीकी से उन्होंने इसका अध्ययन किया है कि वकालत क्या होती है, किस तरह से की जाती है. और मेरे जो कलीग्स कहेंगे, मैं भविष्य के जो जनरेशन है, भावी वकील कहूंगा उनको, उन लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा कार्तिकेय जी के लेक्चर से. तो इसलिए वो जो ज्ञान दे चुके हैं उसमें मैं कुछ ऐड करना नहीं चाहता. हाँ, मेरे जो मुद्दे हैं मैं सिर्फ उसको शामिल करना चाहूंगा, और थोड़े जो पॉइंट्स, जो क्वालिटीज ऑफ एडवोकेट एज पर माय परव्यू, एज पर माय प्रोस्पेक्टिव, मैं वो ऐड करना चाहूंगा. कि सबसे पहले एक अच्छे एडवोकेट में जो स्किल होनी चाहिए वो होनी चाहिए कम्युनिकेशन स्किल. मतलब कि वो जब बोले तो लोगों को अच्छा लगना चाहिए, अच्छा बोले, सहजता से बोले, वर्ड्स वोकैबुलरी शब्दकोश को बहुत सहजता से बोले, कहीं पे भी
कुछ ऐसे शब्द ना हो जिससे किसी को भी मन दुख हो। तो एक कम्युनिकेशन स्किल एक एडवोकेट के लिए बहुत बहुत आवश्यकता है। अभी के जो ट्रेंड चल रहा है, एंड आई वांट टू एक्सप्रेस माय अपोलोजाइज इफ आई विल गो फॉर माय स्टेट। तो गुजरात में ज्यादातर मैंने देखा, क्योंकि मैं ऑल थ्रू आउट इंडिया विजिट करता रहता हूँ, और मैंने ये चीज देखी है कि हमारे यहाँ इंग्लिश का जो डर बचपन से बच्चों पे बिठाया जाता है, इसलिए बहुत से अच्छे वकील हम नहीं ला पाए। आप देखिए, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से लीडिंग एडवोकेट, प्रोमिनेंट एडवोकेट हम दिल्ली में पाते हैं, जैसे कि पारसी नानी पालकीवाला जी से लेकर अभी तक में, अगर आप सोली सौरभ जी whom we lost or last week, eminent luminary एडवोकेट। तो पारसी लोगों को कल्चर और एटमॉस्फेयर ऐसा दिया जाता है कि वो वेरी इजीली पुश देयर वर्ड्स, एक्सप्रेस देयर वर्ड्स। हमारे यहाँ दिक्कत यह है कि कम्युनिकेशन स्किल, आज मुझे सुनकर बहुत लोग खुश होंगे, हाँ कम्युनिकेशन स्किल तो होनी चाहिए हो, पर कम्युनिकेशन स्किल कैसे होगी? और अभी किसी को भी कहेंगे कि हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करनी है तो आधे तो ऐसे ही भाग जाते हैं, ये नहीं, वहां तो इंग्लिश चलती है। तो डोंट वरी। और आपको आज एक गुरु मंत्र देना चाहूंगा ये मंच के द्वारा, कि आपको अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत अच्छा बनाना है या बेहतर बनाना है, तो सबसे पहले 3 स्टेजेस है, जिसको मैं कहूंगा गोल्डन स्टेजेस है। फर्स्ट सुनना, दूसरा बोलना, और तीसरा आएगा लिखना। यहां उल्टा है, अगर कोई एडवोकेट बनना चाहेगा तो वो बेचारा पहले लिखना चालू कर देगा। अब जो डिक्टेट कराएंगे सीनियर वही लिखेगा, अब उसके बाद वो बोलने में हेजिटेट होगा कि आई मे बी रॉन्ग, आई हैव टू बी रेक्टिफाइड बाय माय सीनियर, लोग क्या कहेंगे। और उसके बाद सुनने का अवकाश ही नहीं रहता। दूसरे कुछ महानुभाव होंगे, वो इंस्ट्रक्शन दे देंगे, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए। अरे बच्चे ने पढ़ा तो उसके बाद उसमें वो क्वालिटीज कैसे आएगी? मैं आपको आज ये वेबिनार के द्वारा मेरी एक अपील है, मेरे गुजरात को मुझे बहुत आगे ले जाना। तो विथ फोल्डेड हैंड्स आई विल रिक्वेस्ट कि डोंट वरी फॉर इंग्लिश लैंग्वेज and how to improvise your English language, your communication skill. So first parameter is you have to listen. बच्चा पहले सुनता है, कुछ महीनों बाद बोलता है, और जब वो 3 साल का होता है, स्कूल में जाता है, तब उसको लिखवाना चालू होता है। तो हम भी आज आपको इसी तरह से चाहते हैं कि आप एक वकालत में बच्चे हैं, यू आर राइट नाउ इन वॉर्म likely to deliver। तो आप लोग अभी एक अच्छे लिसनर बनो। जितने भी वेबिनार होते हैं, डोंट फेल टू पार्टिसिपेट। ये जो वेबिनार करते हैं, ये आपको ये जो मंच दिया गया है, उसके पीछे का कड़ा संघर्ष शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। मैं दिल से, मैं अगर ये चीज नहीं करता तो मैं गुनहगार हूं। ये मैं दिल से कहना चाहता हूं कि अंकित रामी सर जैसे मित्र और आपके लिए प्रिंसिपल, एक शिक्षक नहीं होंगे। ये वेबिनार का पोस्टर 3 बजे बना है रात के, और ये अंकित सर ने मुझे 3 बजे भेजा था विद करेक्शंस। कुछ चल रहा था हमारा, अनफॉर्चुनेटली कम्युनिकेशन गैप हुआ। तो ये संघर्ष अगर आपको कोई करके यहाँ पहुंचा रहा है तो प्लीज उस संघर्ष को कंटिन्यू करिए, सफलता आपके पीछे दौड़े। तो सफल आपको कैसे होना है, इसके लिए पहले ये कम्युनिकेशन स्किल जो हार्ट बीट है, क्योंकि अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, आप डरेंगे बेंच से, जज से, कोर्ट से, तो आप शायद हाईकोर्ट के मंच पे भी नहीं खड़े रह पाएंगे। और अगर आप हाईकोर्ट में ही भी आपका केस मेड आउट करने में डरोगे तो सुप्रीम कोर्ट को आप समझ लीजिए कि भूल जाइए, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्योंकि आपके जहन में ये नहीं है कि मैं कर पाऊंगा, तो फिर तो कोई करवा भी नहीं सकता। You have to determine first of all with yourself, you have to be committed। तो सबसे पहले सुनने का रखिए। जितने भी वेबिनार्स होते हैं, डोंट फॉरगेट टू पार्ट एंड पार्टिसिपेट। दूसरी
जो एकेडमिक आर्ग्यूमेंट्स होती है बहुत बार मंच में बुलाया जाता है, मेरा भी सौभाग्य मिला है। बहुत बार नए जो लॉ आते हैं तो उस समय हमें मौका मिला, वो मंच पे हमने डिबेट्स में पार्ट किया। इसी तरह आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, यूट्यूब पे जाइए, अच्छे अच्छे एडवोकेट को सुनिए। सुनोगे तो आपको लगेगा कि बहुत अच्छा है। उसके कुछ शब्द रोज अगर आप हो सके, मैं ये आपको गाइड नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है मेरे गुजरात की परिस्थिति, तो मैं आपको ये गाइड नहीं करूंगा कि आप जनरल पढ़िए, एक जजमेंट पढ़िए, काइजेंस की जो स्कीम है चाइनीज की, जो कि वो बड़ी जो चीज होती है वो काट के मतलब टुकड़े टुकड़े में करते हैं, मतलब नॉलेज जो है वो एक साथ प्राप्त नहीं होता है, तो उसको रोज थोड़ा 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 करके लीजिए। मैं वो आपको बाद में कहूंगा, लेकिन जब आप शुरुआत करोगे, when you are before the court, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि मेरे पास एक ऐसी स्किल हो कि मैं बेंच में यानी कि जज के सामने खुद को एक्सप्रेस कर पाऊं। तो वो स्किल जो है कम्युनिकेशन की स्किल है। अगर यहाँ से आपको रट्टू पोपट बनाकर भेज दिया गया और जज ने कोई आपको इंक्वायरी कर ली कि मिस्टर व्हाट इज अबाउट दैट, हाउ टू बी अलाउड योर रिलीफ, हाउ वी कैन ग्रांट यू एनी रिलीफ, हाउ द प्रेयर क्लॉथ हैज टू बी अलाउड, तो उस समय अगर आपके पास एक अच्छी स्किल नहीं होगी, एक अच्छी इंग्लिश नहीं बोलोगे, अगर आपका शब्दकोश यानी कि वोकैबुलरी साउंड नहीं है, तो आप अंदर से डरोगे, कहीं ना कहीं दिक्कतें आएगी और आप कोर्ट से डरते जाओगे और वो फियर जो है वो एक माउंटेनिंग यानी कि पहाड़ समान हो जाएगा और वो एक स्टेज के बाद इरिवर्सिबल हो जाएगा। तो सबसे पहले हर मित्र को, हर मेरे बच्चों को यही कहना चाहूंगा कि आपको सबसे पहले सुनना है, सुनने की आदत डालिए। एटलीस्ट कोई भी स्पीकर को सुनिए, दिन में 1 या 2 वीडियो के लिए टाइम स्पेयर करिए, 15 मिनट 20 मिनट वॉट एवर टाइम सुटेबल टू यू। आज 15 मिनट से शुरू करिए, कल उठ के आप इसको 30 मिनट 40 मिनट करिएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको आगे जाकर बहुत आगे ले जाएगी। उसके बाद जैसे मुझे कोई इंटरप्ट कर रहा है, आई डोंट वांट टू अटर द नेम, प्लीज ये जो भी बोल रहा है आप प्लीज अपना म्यूट कर दीजिए, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। प्लीज कोऑर्डिनेटर हु इज देयर, या उनको डिलीट कर दीजिए या फिर प्लीज उनको कह दीजिए वो म्यूट हो जाए। दैट इज डिस्ट्रैक्टिंग मी, आई कांट फोकस ऑन माय व्यूज। मिस्टर कोऑर्डिनेटर, सर आपका माइक आप स्टार्ट कीजिए। ओके, वो किसी का आवाज आ रहा था तो इट इज डिस्टर्बिंग टू मी। ओके, शैल आई कंटिन्यू? यस सर। तो आप सबसे पहले रोज 4 या 5 वीडियो से शुरू करिए। अगर आपको बहुत बोर लगता है तो एक वीडियो से शुरू कीजिए। सिर्फ 10 मिनट का टाइम खुद को दीजिए। 10 मिनट के टाइम के बाद आपको अगर एक शब्द भी रोज एक स्पीच से मिल गया ना, तो आप ये समझ लीजिए कि आपने आपकी वोकैबुलरी यानी आपने आपकी प्रॉपर्टी बनाने लग गए, आपके एसेट्स बन गए। क्योंकि वकालत में सबसे बड़ी जो चीज है ना वो हमारी जुबान है, हमारी वोकैबुलरी है। अगर आप अच्छे वक्ता बनना चाहते हो, एक अच्छे अधिवक्ता बनने चाहते हो, तो आपके पास बहुत अच्छे शब्दकोश होने चाहिए। जैसे कि मेरे विद्वान मित्र ने, मेरे भाई समान अनुज मित्र है, जो मेरे अनुज भाई है, कार्तिक जी ने कहा, पारसी काविना जी सर सीनियर एडवोकेट है गुजरात हाईकोर्ट के, लंडन ऑनरेबल जस्टिस पार्टीवाला साहब, ये बोथ आर फ्रॉम पारसी फ्रेटर्निटी। तो वो लोगों के पास बहुत अच्छी वोकैबुलरी, वी आर वेरी मच इम्प्रेस। हम उनसे आज की तारीख में भी सीखते हैं कि कैसे वो लोग कितने इजीली ऐसे शब्द लेके आते हैं। तो आज भी हमको ये मोह माया है कि हम हमारे शब्दकोश का भंडार बढ़ते जाते हैं। तो आपको भी बढ़ाना है, क्योंकि आपको कल उठ के एक अच्छा वकील बनना है। तो आप एक अलग शब्द जब बोलोगे ना, तो आपको लोगों के द्वारा जो प्रतिशत मिलेगा ना, वो धन्य हो जाओगे आप। पैसा तो हर कोई कमाता है, किसी भी तरीके से कमाता है, लेकिन सबके अपने अपने तरीके होते हैं। तो एक तरीका ये भी है कि आप एक अच्छे वक्ता बनो, एक अच्छे अधिवक्ता बनो। और वो अधिवक्ता तभी बन पाओगे जब आपके पास बहुत ही सुंदर शब्दकोश होगा, एक डेकोरेटिव वोकैबुलरी होगी। और एक बात बताऊं, वोकैबुलरी जो है वो माइंड में सेट करनी है। यू डोंट हैव टू कैरी
बट यू हैव टू बी लीगल। तो ये आपको बड़ा आसान सा तरीका लगेगा। कल उठ के जब 2 या 3 साल में जब आपको हाईकोर्ट पहुंचना है तो उस समय अगर आपके रोज के 300 शब्द गिन रहे हैं, अरे रोज के 1 शब्द गिन के साल के 300 शब्द बोल रहा हूं, 365 भी नहीं, तो 3 साल में अगर आपके पास 1000 नए शब्द हैं दूसरों से विभिन्न प्रकार के, तो आप समझिए कि आप में कुछ ना कुछ तो अलग है। और आपको खुद लगेगा कि उस समय जो दूसरा बोल रहा है उसके सामने अगर आप एक अच्छे शब्द का उपयोग करोगे तो आप डेफिनेटली बेंच से बहुत अच्छा प्रतिसाद पाओगे। इट इज वेरी अट्रैक्टिव व्हेन यू आर यूजिंग अ न्यू वर्ड्स, तो कोर्ट विल डेफिनेटली लाइक इट। ठीक है, तो पहले सुनना है, जैसे सुनते हो उसके बाद बोलने की थोड़ी आदत डाली। एंड डोंट वरी, अभी तक मैंने नहीं सुना कि गलत इंग्लिश बोलने से फांसी की सजा हुई हो, उम्र कैद हुई हो, 6 महीने की सजा हुई हो या 1 दिन की कारावास हुई हो। ठीक है, गलत बोलते हो कोई बात नहीं, एफर्ट्स कर रहे हो वो बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है, वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी सिद्धि है। तो बोलिए, गलत सही तो गलत सही बोलिए, बी करेजियस, क्योंकि आपको ये चीज इनबिल्ट लेकर आकर चलोगे तो शायद आप एक बेहतर वकील यानी कि अधिवक्ता बनोगे। ठीक है, तो ये पहली चीज जो मैंने आपको बताई, सुनना है, बोलना है, और ये दो जब आपकी कंटिन्यूटी में आ जाएगा ना, आपकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये 3 जो चीजें हैं गोल्डन लाइन, अगर आप स्मरण शक्ति अच्छी रखते, मेमोरी पावर अगर आपकी अच्छी है, बेहतर है, तो मेरा कहना व्यर्थ है। लेकिन अगर आपकी स्मरण शक्ति इतनी अच्छी नहीं है तो जस्ट नोट डाउन द गोल्डन पॉइंट फॉर कम्युनिकेशन स्किल। दैट इज माय फर्स्ट एंडाइवर कि हर बच्चे के पास ये चीज होनी चाहिए जिससे वो एक बेहतर अधिवक्ता बनेगा। ठीक है, दूसरी जो क्वालिटी है वो नॉलेज है। अब आपको पता है, अभी हमारे 2 अधिवक्ता जो माननीय कार्तिकेय पानीरे जी और गौरव भटनागर जी ने कहा कि देखिए बुद्धिजीवी है इसीलिए हम वकीलात में हैं, और वकीलात कर रहे हैं यानी बुद्धिजीवी। ठीक है, तो आप विद्वान तो हो ही, ये आपको पता है, सामने वाले को पता है। ठीक है, लेकिन आप विद्वान कैसे बनेंगे? आपको एक सिंबल भी मिल जाता है, अदर साइड इज ऑल्सो अटरिंग दैट माय लर्नेड फ्रेंड। ठीक है, कोर्ट भी बोलती है, ऑर्डर में लिखा जाता है लर्नेड एडवोकेट, अगर आपने एक और सिद्धियां पा ली तो लर्नेड सीनियर एडवोकेट हो जाता है। ठीक है, तो आप विद्वान कैसे बनेंगे? विद्वान बनना है, क्वालिटीज ऑफ एडवोकेट वेरी नाइस, बट हाउ टू बी अ लर्नेड और नॉलेजेबल, उसके 2 तरीके, एक है प्रैक्टिकल, सेकंड इज थियोरेटिकल। प्रैक्टिकल का मतलब ये होता है कि आपको सीनियर की ऑफिस में ज्वाइंट होना है। ईच एंड एवरीथिंग हैज टू बी अडॉप्टेड इफ ही इज हैविंग गुड क्वालिटी। ऐसा नहीं है कि हमारे साहब अगर सिगरेट पीते तो वी विल अडॉप्ट दैट प्रैक्टिस, नॉट एट ऑल। आपको हंस बनना है, सिर्फ दूध का आचरण करना है, बाकी जो है राम राम। ठीक है, तो गुड क्वालिटी कि वो वर्किंग स्टाइल कैसा है, वो किस तरह से रिसर्च करते हैं, उनकी स्किल को एडॉप्ट करिए, अच्छी चीजों को एडॉप्ट करिए, वो क्लाइंट से रिजनेबल एक्सटेंट पे कैसे बात करते हैं। ठीक है, वो बेंच के सामने खुद को किस तरह से वो प्रेजेंट करते हैं, उनका प्रेजेंटेशन कैसा है। तो ये चीजें हैं प्रैक्टिकल पार्लेंस की। अब आया थियोरेटिकल, ये शायद आपको कहीं पे किताब में नहीं मिलेगा। अगर आपको नॉलेजेबल और लर्नेड एडवोकेट बनना है, आज ही लिखना हो तो लिख लीजिए, स्मरण शक्ति है फॉर सेक ऑफ रिपीटेशन, अगर स्मरण शक्ति अच्छी है तो फिर आप स्मरण कर सकते हो। तो आपको 2 किताबें, आई विल एड वन मोर थिंग, 3 किताबें, दैट इज कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, एंड आई विल एड वन थिंग, इंडियन एविडेंस एक्ट। These 3 are the holy Bible for me, for every advocate who is right now having the position of eminent advocate or luminary. जो भी है काबिल, प्रसिद्ध और सफल वकील अधिवक्ता हैं, तो वो लोग आपको कभी भी किसी भी तरह से असिस्ट कर रहे हैं, विजनरी है उनके पास। तो वो क्यों है? सॉरी, क्योंकि उन्होंने इसका स्मरण कर रखा है, अध्ययन कर रखा है। They have gone through it, they have read it, they have memorized it.
तो आप ये पढ़िए, ये एक थियोरिकल है जिससे आप लर्नर बनेंगे। लर्नर बन गए, क्वालिटीज आ गई तो डेफिनेटली आप एमिनेंट बन गए। तो ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड चीज है कि आप में अगर क्वालिटीज है तो यू विल डेफिनेटली अ गुड एडवोकेट। If you are having the good qualities of advocate, then it is a very short run. It's a journey which is going to be easily completed and reach to the destination in the manner of eminent advocate. प्रसिद्धि रातों रात नहीं होगी। नॉलेज का भी ऐसा है कि बूंद बूंद जो होगा, ड्रॉप्स, वो बूंद बूंद ही आपको ज्ञान मिलेगा। और मैं आपको कहता हूं कि अगर आपको रातों रात 1935 से लेकर 2021 मई 9 तक के जजमेंट किसी की ताकत नहीं है पढ़ के दिखा, तो वो धीरे धीरे ही उसको ज्ञान लेना पड़ेगा, रोज पढ़ने पड़ेंगे। और याद रखना, ये 3 चीजें जिंदगी में कहीं पे भी रहो, बहुत सोच समझ के स्लोली और ग्रेजुअली आए तो अच्छा है। फर्स्ट इज धन, सेकेंड इज ज्ञान। ठीक है, तो ये चीजें अगर दिमाग पे चढ़ गई तो बड़ा दिक्कत का मामला आ जाता है। तो तीसरा जो है वो मैं इसलिए अभी आपको शेयर नहीं कर रहा हूं, धर्म। तो धन और ज्ञान से हम जुड़े रहे तो ज्यादा अच्छा है। धर्म की बात पे मैं इसलिए बोलता हूं कि बहुत ही फैनाटिक हो जाते हैं आप, बराबर है, तो बड़ी दिक्कत है। फिर क्या होता है कि आप एक फैनाटिक मतलब एक इतने धार्मिक हो गए, कट्टरवादी हो गए, ऑर्थोडॉक्स हो गए, तो दिक्कत ये आएगी कि फिर आपके जब इंटर रिलीजन के, जब आउटसाइड कास्ट के या आउटसाइड रिलीजन के लोग आते हैं, यानी कि देन आई एम अ हिंदू और मैं बहुत ही, मेरे पे धर्म चढ़ गया है, मैं तिलकधारी हो गया, मैं वो कुछ भी हो गया, जनोईधारी हो गया, जो भी हो गया। देखिए, मैं किसी के ऊपर पर्सनल अटैक नहीं करना चाहता ये वेबिनार के द्वारा। तो अगर धर्म भी मेरे ऊपर चढ़ गया ना, तो कहीं ना कहीं वो पैरामीटर मेरे लिए डेंजरस है। तो मैं वो कभी कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं है मेरे हर सेमिनार में, मेरे हर आर्ग्यूमेंट में। हमेशा कोर्ट में भी मैं, इवन मेरे ये डिबेट्स भी आती है तो उस समय भी मैं बहुत रिस्ट्रिक्टिव जोन में रहता हूँ, क्योंकि सच बोलना मेरी एक आदत है और मेरा स्वभाव है। तो किसी को कभी जाने अनजाने में भी क्या क्षति पहुंच सकती है, इसलिए मैं वो चीज को नहीं कह रहा हूं। लेकिन आपको ज्ञान और धन ये धीरे धीरे आएगा तो आपको भी क्या है, आप अंडर कंट्रोल रहेंगे, फूलेंगे नहीं, बिगड़ेंगे नहीं, फैल नहीं जाएंगे। तो ये जो चीज है, ये धर्म की और वो कंट्रोवर्सी की बातें हैं, उसमें हमें नहीं पढ़ना है। और उसके बाद जो आ रहा है बच्चों, कि आपको पेशेंस, धैर्य बहुत रखना है। अभी जैसे आप में से कुछ वकील बनने की तैयारी में होंगे, 3rd ईयर के बाद आप एडवोकेट बन जाओगे आफ्टर एनरोल्ड इन द बार काउंसिल। तो बहुत धैर्य रखना बच्चों, डोंट लूज योर पेशेंस, डोंट लूज, नॉट एट ऑल। काम आए ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, लेकिन फाइल आएगी, स्लोली स्टेडी आएगी। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, यू हैव टू बी सस्टेन, आपको वहां टिक कर रहना, यू हैव टू बी करेजियस। किसी के पास आपके साथ कैरियर की शुरुआत करने के वाले के पास अगर 25 फाइलें आ गई एंड यू हैव नॉट फाइल एनी अपीयरेंस, डोंट फील इंफीरियर, छोटापन मत सोचिए। क्या पता आपके पास आज एक केस ऐसा आ जाए कि उसके 25 केस से भी ज्यादा पॉपुलैरिटी आपको ओवरनाइट मिल जाए। तो बहुत धैर्य रखना है, बहुत ही करेज के साथ आपको आगे बढ़ना है और ये क्वालिटी रखनी पड़ेगी। क्योंकि हम भी ये देख चुके हैं कि जब हमारा कोई ऐसा लीगल बैकग्राउंड या जुडिशरी का बैकग्राउंड नहीं होता है तो लोग हमें भी एंगेज करने से पहले बहुत सोचते हैं कि वेदर आई कैन जस्टिफाई हिज केस, वेदर आई कैन कंटेस्ट हिज केस, वेदर आई कैन डिफेंड हिज केस। तो ये सब जो चक्रव्यूह है उसकी कोई चिंता नहीं करने की, सबकी अपनी अपनी सोच है और सबके अपने अपने तरीके हैं। ठीक है। दूसरा, एक एडवोकेट के पास हमेशा कॉमन सेंस होना चाहिए। ये बहुत वैल्यूएबल क्वालिटीज है, प्रीशियस क्वालिटीज है। क्यों? क्योंकि जैसे आपके पास फर्स्ट फाइल आ गई, यू हैव लैक ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, लेकिन
आप लॉ पढ़ चुके हो, सौभाग्य से वेबिनार भी आप ज्वाइन कर रहे हो, और भी नेशनल वेबिनार है, सेमिनार है, व्हाट्सएवर मीटिंग्स है या बूट कोर्ट सेटिंग, तो आपको कुछ चीजें पता है, एक्सपीरियंस नहीं है नो डाउट, तो आपके पास एक कॉमन सेंस होता है कि मैं ये केस में किस तरह से उसको निकाल लाऊंगा, या सामने वाले से मेरे को जैसे पैसे निकलवाने हैं, मनी शूट करना है, या फिर आपको स्टे लेना है, तो मैं ये मेरे क्लाइंट को कैसे प्रोटेक्ट, तो ये एक बहुत ही रेलिवेंट एस्पेक्ट है एक अधिवक्ता के लिए कि उसमें कॉमन सेंस होना चाहिए। और मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि लॉ इज नथिंग बट क्वालिफाइड कॉमन सेंस। मैं फिर आपको कहूंगा, अगर आपकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो लिख लीजिए, आई विल रिपीट कि लॉ इज नथिंग बट क्वालिफाइड कॉमन सेंस, लिखा हुआ कॉमन सेंस है, क्वालिफाइड। तो बहुत ही आसानी से वकालत में आप एंटर करिए, क्योंकि कसौटी और अगली परीक्षा कोट पहनने के बाद होती, और उस समय ऐसा होता है कि कोट पहनने के बाद आप किसी से पूछने जाते हो ना, तो आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स होगा, इंफीरियरिटी होगी, यार मेरे को मैं ये सीनियर से कैसे पूछूं, ये होता है। और कोई सीनियर सामने से नहीं बताए। हमारा बहुत सौभाग्य रहा कि अच्छे अच्छे सीनियर, और मैं एक मेरे आदरणीय कहूंगा एमजे सेठना साहब, और ये बहुत ही अजीब और जेनरसनेस ऑफ मिस्टर सेठना कहूंगा। हाईकोर्ट में हमारे दो लाइब्रेरी है, एक है एडवोकेट लाइब्रेरी, एक है रेफरेंस लाइब्रेरी। सेठना सर इज ऑलवेज सिटिंग इन रेफरेंस लाइब्रेरी, और वहां पे वो ड्राफ्टिंग एंड कन्विंसिंग स्टेनो को बुला के वहां लिखो। मैं वहां पढ़ रहा था, क्योंकि जूनियर डेज में हमारे पास काम नहीं हुआ करता था, सीनियर का बोर्ड खत्म हो गया तो वो बोल देते थे 5 बजे हम ऑफिस पे मिलेंगे। अब हमारा काम अगर 1:45 बजे खत्म हो गया, तब रिसेस हुआ करती थी 1:45 से 2:30 बजे, तो हम क्या करें। तो अब से हम वहां बैठ के पढ़ रहे थे और सर लिखवा रहे थे, एक लेडी आई, चिट्ठी लिखी हुई थी, वो पढ़ नहीं पा रही थी, और किसी ने बोला कि वो साहब वहां बैठे, वो रेफरेंस में बाहर जो बैठते ना वो रिसेप्शन पे, उनसे चिट्ठी पे नाम बोले ये साहब कौन, तो बोले वो साहब बैठे। मैं उनके एग्जैक्ट सामने बैठा था, वो उस तरफ के टेबल पे थे, मैं यहाँ बैठकर मेरी बुक पढ़ रहा था। तो आए, वो लेडी ने नमन किया, बोले हाँ, बोले आप सेठना साहब, बोले हाँ। तो चिट्ठी लिखकर किसी ने एक पीस ऑफ पेपर था, उस पर ऐसा लिख कर दिया कि सेठना साहब को मिल लो, आपका काम हो जाएगा। आप यकीन नहीं करोगे, ये मैं देख चुका हूं। दिस वी हैव लर्न how the people are generous, how the people become eminent. No, I will not use the word people. How eminent luminary advocate the Mr. Setna sir is. के उन्होंने चिट्ठी पे इतना देखा, और उन्होंने बोले क्या हुआ, तो बोले मेरे को हाईकोर्ट की एडवोकेट की बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का काम था, तो आप हो। अब उस समय ऐसा था कि उस समय सर नहीं थे, उस समय यतीन ओझा सर थे, वो पहले थे प्रेसिडेंट। अब उन्होंने बहुत ही स्पष्टता के साथ ये जवाब दे दिया, उनको उत्तर दे दिया कि मैं नहीं हूं, मिस्टर ओझा है। ओके, तो वो लेडी रोने लग गई, तो बोला उनको ये रोते रोते चल रही थी, तो सर ने बुलाया कि मैं नहीं आऊं। बोले क्या हो, तो बोले मेरे पति गुजर गए हैं, मेरे एक कन्विक्शन हुआ था। वो अरे पति को कन्विक्शन और हाईकोर्ट में अपील करनी थी, और मेरे पास पैसे नहीं है, और मेरे को किसी ने सर आपका नाम दिया था। अगले ने ये भी नहीं पूछा किसने नाम दिया था, फटी हुई चिट्ठी दी थी और उस पर लिखा हुआ था ये साहब को मिले। अ पर्सन हु डोंट नो दैट लेडी, ना नाम पूछा, ना किसका रेफरेंस है पूछा, वॉलेट निकाला, 5,000 रुपए दे। ये मैं हाजरा हजूर में मैंने साक्षात देखा है कि हाउ जेनरस अ पर्सन इज। तो ये हम ब्रॉटअप होते गए ना, हम सीखते गए कि देखिए आप सब कुछ करिए, लेकिन जेनरसनेस मत छोड़िए। आपके पास जब आप अगले साल या 2 साल बाद या 3 साल बाद आप जब अधिवक्ता बनेंगे, और आप जब आपकी ऑफिस लेकर बैठे, सीनियर के वहां 2-3 साल आप सीखिए, वेल प्रिपेयर्ड हो जाइए। 3 साल में, 5 साल में, कुछ लोग बेचारे ज्यादा मेहनत करते हैं, 10 साल के बाद भी जब आप डिसीजन मेकर बनो, मतलब यू आर हैविंग योर ओन चेंबर, तो उस समय
बच्चों एक चीज को हमेशा याद रखना कि डोंट बी ग्रीडी, लालची मत बनना, एंड डोंट बी मनी ओरिएंटेड। रीजन भी, अगर हर शख्स, हर इंसान हमें कुछ ना कुछ दे जाता है, ये हमेशा याद रखना। क्योंकि मैंने मेरी जिंदगी में हमेशा मॉरल व्यू से ही काम किया और वैसे ही करूंगा। और आज की जो भी हमारे साथ एसोसिएट है उनको भी ये चीज पता है कि कुछ भी होगा ये चीज में मैं नहीं लूंगा, आई विल नॉट चार्ज। तो अगर कोई शख्स आता है आपके पास और उस समय आप चाहे लाख रुपए चार्ज कर रहे हो या 2 लाख रुपए या 10 लाख चार्ज, लेकिन अगर कोई इंसान आपके पास एक एक्सपेक्टेशंस के साथ आता है कि सर प्लीज टेक दिस केस, और आप उनको ये कहोगे हाँ मैं इस तरह की केस लेता हूं, और अगर इस पॉकेट इज नॉट परमिटिंग अप टू द एक्सटेंड ऑफ 25,000 और 30,000, बराबर है, इररिस्पेक्टिव व्हाट इज योर फीस। तो डोंट बी ग्रीडी। 10 लाख देने वाले 10 करोड़ है, पर 10 लाख चार्ज करके 25,000 में लड़ने वाले शायद आप ही हो, और ये अपॉर्चुनिटी ऊपर वाला दे रहा है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, दिस विल टेक यू टू द लॉन्ग रन। ये आपको ऐसी शिखर के सक्सेस तक ले जाएगी कि आपको शायद एहसास नहीं होगा आज, क्योंकि ये चीज आप प्रैक्टिकली अभी कर नहीं हो। मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज के डेट में बहुत हेफ्टी चार्ज है। मेरे को बहुत बार मेरे मित्र कहते हैं कि यू आर चार्जिंग हेफ्टी फीस, तो मैं कहता हूं कि काम में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, रेमंड के कपड़े हैं तो महंगे होंगे। ये और अगर आज के समय में पुअर नीडी विडो ऑर्फन मेरे पास आते हैं, और भविष्य में जब तक मैं सरवाइव करूंगा, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं और मैं लड़ने के लिए सक्षम हूं, तब तक यही असूलों पे चलूंगा कि पुअर नीडी ऑर्फन एंड विडो, इन लोगों से जो वो दे पाएंगे वही मेरी फीस है। और आपको ये बता दूं, शायद बहुत कम लोगों को पता है कि एक बहुत ही एमिनेंट एडवोकेट थे श्री राम जेठमलानी। ये बहुत कम को पता है, मैं इसलिए कह रहा हूं शायद आप लोगों को भी ये चीज का सुनकर एक ऐसा होगा नहीं नहीं ये तो नहीं था। वो इंसान, एक तो पहले बता दूं मैं आपको कि वकील किसी को बनाया नहीं जा सकता, दे आर बोर्न। वकील पैदा होते, वकील कोई बनता नहीं है। अगर आपका जन्म हुआ है तो आप समझ लीजिए कि वकालत के लिए जन्म हुआ है। फिर आप जॉब के लिए जाएंगे, आर्टिकलशिप करके बोलेंगे मेरे से ये नहीं होगा, 2 साल के बाद घर बैठ के फिर ये करोगे, शॉप पर बैठ के फिर बोले नहीं यार वकालत में मजा। तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपका जन्म तो वकालत के लिए हुआ था, लेकिन यू आर ऑन द रॉन्ग प्लेस और यू आर एट रॉन्ग प्लेस एंड रॉन्ग टाइम। गो बैक एंड ज्वाइन द लीगल फ्रेटर्निटी, लीगल फील्ड। तो बहुत कम लोगों को पता है कि आदरणीय श्री राम जेठमलानी जी 90% लोगों से फ्री में मैटर में हियरिंग करते थे। इनका मैं एक दूसरा परिवार एक और बताता हूं पासा कि ही इज चार्जिंग 25 लाख रुपीज फॉर पर हियरिंग। अगर वो जाके खड़े होते हैं तो ही इज चार्जिंग 25 लाख रुपीज फॉर पर हियरिंग एंड ही इज एन एडवोकेट। अगर मैं आज गया हूं डिवीजन बेंच में, मर्डर का मेरा अपील है और मेरे को कन्वीनियंट, यानी राम जेठमलानी को अगर ये कन्वीनियंट नहीं है सॉरी थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। अगर राम जेठमलानी जी जाएंगे और कहेंगे कि आज मतलब कि 9
मई 2021 को मुझे कन्वीनियंट नहीं है और वो जाके या उनका एसोसिएट जाकर देख लेगा तो वो खुद की डायरी में देखेंगे। ओके, तो एक काम करिए 20 जून को रख लीजिए ये मैटर, और 20 जून का डेट ले रहा है ना, तो ही इज चार्जिंग 10 लाख रुपीज फॉर एडजॉर्नमेंट। ये वो लेवल के एडवोकेट थे और वो ही लेवल के एडवोकेट 90% चैरिटी करते थे। हाउ मच इज जनरेशन, ये जनरस ही यार। आपको बता दूं, मैं ये कहा कि एडवोकेट बॉर्न होते हैं, किसी को आपने ये देखा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टैंडर्ड का एग्जाम एक साथ में देकर सब में क्वालिफाइड किया? राम जेठमलानी जी ने उनके जो बाल अवस्था थी, उन्होंने 4 साल का एग्जाम एक ही साथ क्लियर किया, 17 साल में एडवोकेट बने, 18 साल में एनरोल हुए। आप सोच सकते हैं उनको जितने पत्थर लगे हैं, एक वृक्ष को, आम के पेड़ को जितने लगते हैं, शायद उससे ज्यादा पत्थर लगे उन लोगों ने। ये भी कहा ये स्मगलर के एडवोकेट है, ये एंटी टेररिस्ट के एडवोकेट है, ये वो है, इनको पैसा दो तो ये कुछ भी कर देते हैं, इनको पैसा ही चाहिए। तो बहुत उनका व्यू बहुत क्लियर था कि मैं मेरे क्लाइंट को अगर बचा सकता हूं और उसके लिए मैं अगर चार्ज करता हूं, तो मैं मेरे क्लाइंट को नहीं देख रहा हूं, मैं मेरे केस को देख रहा हूं। आप सोचिए उनका कितना विजन पावरफुल होगा, हाउ फोकस ही इज ऑन हिज केस। तो ये सब चीजें हम जैसे ब्रॉटअप होते गए हमने ये देखी है। तो आप लोगों से भी मैं हमेशा यही गुजारिश करूंगा कि देयर इज नो रूम एट द टॉप, यू हैव टू रीच दैट। या फिर इसको मैं अलग भाषा में कहूं तो देयर इज रूम एट द टॉप वेटिंग फॉर ऑल माय लर्निंग फ्रेंड्स, द टाइम फॉर यू is going to be come or probably has come। क्या पता आज के वेबिनार के बाद आपका समय शुरू हो गया हो, अब आपको बस वो रूम तक पहुंचना है, सक्सेस के टॉप पे जो है मैं एक निमित्त बन सकता हूं। आई विल बी अ प्रीटेक्स्ट। मुझे अगर आज आपके सुनने के लिए आपका प्रेशियस टाइम दिया है तो मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपका लाइफ, आपका जीवन बेहतर बना सकूं, इतना मैं कमिटेड। एडवोकेट की क्वालिटीज पे अगर आए तो मैंने जैसे कहा कि जनरस। दूसरा, जब आप एडवोकेट बन जाएंगे और जब आपका आर्ग्यूमेंट शुरू होता है तो उस समय एक चीज हमेशा बच्चों याद रखना कि दुश्मनी यानी कि डोंट बी एनिमी। दुश्मना हो सके कभी मत अर्न करना। अगर आपको अर्न यानी कमाना है तो दुश्मनी मत कमाना, कमाना है तो गुडविल कमाना। अब ये दुश्मनी का मामला कैसे आएगा, बहुत ही सहजता की बात है। हम देख चुके हैं 2 काउंसल्स एडवोकेट्स लड़ते हैं, कभी पर्सनल अटैक हो जाता है, वो पर्सनल आ जाता है, यहां तक कि एक दूसरे के सामने इतना हिटिंग आर्ग्यूमेंट करते हैं और कभी बिलो बेल्ट बोल देते। अब वो बिलो बेल्ट बोलने के बाद क्या होता है, दोनों में अदावत, इंग्लिश में उसको बोलते हैं ग्रज, वो एक भावना आ जाती है। नेक्स्ट मैटर में क्या होता है, अच्छा केस भी होता है ना, तो दूसरा जानबूझ के उसको डिस्टर्ब करेगा। रिलीफ मिल रही होगी क्योंकि आप समझिए अगर आपने एक फेलोशिप, एक फ्रेंडशिप का एटमॉस्फेयर रखा ना, तो डेफिनेटली इट विल टेक यू टू द लॉन्ग रन। और ये मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस बताऊं कि मेरे कुछ ऐसे अदर साइड ओपोनेंट एडवोकेट रहे जिनके फादर के साथ में लड़ चुका, नाउ दे आर नो मोर, बट सम टाइम दे आर कैरिंग द फाइल्स, और आज वो लोग मुझे हाई कोर्ट में और दिल्ली में रिफर कर, क्योंकि हम लड़े और बहुत की मेहनत, बहुत ईमानदारी से लड़े, नो डाउट अबाउट इट। बहुत हिटिंग आर्ग्यूमेंट, मतलब जबरदस्त हिटिंग आर्ग्यूमेंट, लेकिन नहीं बिलो बेल्ट नहीं, कुछ भी हो जाए 10 मिनट हमने हिटिंग आर्ग्यूमेंट किया, सामने वाला भी फुल एग्रेशन के साथ, विटनेस संघर्ष भी फुल एग्रेशन के साथ, लेकिन आफ्टर resting my argument, we have a charm on the face, and we will say with all seriousness, my learned friend has played his part with all seriousness, with all seriousness। ये बोलते हैं
मैं आपको खुद को अप्रिशिएट कितना मिला वो नहीं बताना चाहता, लेकिन एक वाक्य मेरे लाइफ में रहा और मैं इसलिए बच्चों आपसे शेयर करना चाहता हूं कि आप कुछ इससे अच्छा सीखेंगे। और मैं खुद को पोस्टुलेट करके या इलस्ट्रेशन देकर नहीं बताना चाहता कि एज अ मिथेशन, प्लीज डोंट टेक मी लाइक दिस। आई एम नॉट द हंग्री ऑफ माई पॉपुलैरिटी, क्योंकि मैं जो करता हूं वो करता हूं, नहीं करता तो नहीं करता। आई एम मैन ऑफ माई वर्ड्स। तो हम एक प्रॉपर्टी की मैटर पे लड़ रहे थे। आई वॉज फॉर द परचेसर, अनफॉर्चुनेटली दैट प्रॉपर्टी वॉज बीन सोल्ड आउट, not sold out, but an agreement to sell that is called Banakat has been executed with someone else for that same property. Okay, I am the purchaser. I have the register sealed deed on that. अब मेरे पास रजिस्टर सील्ड है, मैं मालिक हूं वो प्रॉपर्टी का। मैंने जिससे खरीदी अगले ने 55-60 लाख रुपए दूसरे से लेकर उसको बानाकात कर दिया था और मेरे बात किया था। अब वो कोर्ट डोज कैसे हुआ, अगले ने केस लगा दिया कि ये प्रॉपर्टी जो है नॉट टू सेल, एलिनेट, ये है यो है फलाना, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब हम तो परचेसर है, तो पहले तो जो सामने वाले 4-5 है वो, मैं ओरिजिनल परचेसर, आई एम इन द शूज ऑफ द ओरिजिनल डिफेंडेंट नंबर 1 to 4। ओके, अब दिक्कत ये आ रही थी कि हमने लगाया रिजेक्शन ऑफ क्लेम, मतलब कि ये जो आपने दावा किया है उसमें कोई कारण नहीं है और ये दावा को डिसमिस किया जाए। इसको बोलते हैं ऑर्डर 7-11 सबसेक्शन डी ऑफ सीपीसी, रिजेक्शन ऑफ क्लेम। ठीक है, दावे को रद्द करने की अर्जी। अब हमने शुरू किया, क्योंकि मेरी एप्लीकेशन थी, ऐसे तो प्लेंटिफ को शुरू करना होता है। हमने शुरू किया, हमारे काउंटर पार्ट जो प्लेंटिफ के एडवोकेट थे उन्होंने शुरू किया, हमने उनको रिबर्टल किया, आर्ग्यूमेंट खत्म हुई। जज अभी कुछ गए कि मैटर केप्ट फॉर ऑर्डर। मेरी जिंदगी का मेरे लिए सबसे बड़ा एक्नॉलेजमेंट, सबसे बड़ा रिवॉर्ड, सबसे बड़ी फीस और बहुत सारा धन्यवाद कि ईश्वर ने कुछ मुझे इस काबिल बनाया। अदर साइड एडवोकेट, मैं यहां हूं, अदर साइड एडवोकेट सामने की तरफ है, ही कम टू बैक टू मी, मैंने मेरी पीठ करता पा रहा है अगला। और ओपन कोर्ट में क्या कह रहा है पता है आपको, हमारा विद्वान मित्र बहुत मस्त आर्ग्यूमेंट करे। These are the words from other side advocate. This I have heard. This is the reward for life. शायद उस केस को 10 साल हो गए लड़े, लेकिन शायद मैं अंतिम सांस तक वो शख्स का आभारी रहूंगा। क्यों? उसने जो मुझे दे दिया ना, शायद मुझे कोई नहीं दे पाए। कमाना है तो ये कमाइएगा और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा, ऑलवेज गो विद डिवोशन। आप कोई भी काम को लेकर जब भी जाए बच्चों, चाहे कोर्ट में या काम अगर आपके पास चेंबर में, मतलब कि ऑफिस में आता है, तो बहुत डिवोशन के साथ करना। कार्तिक जी ने कहा, मैं उसमें थोड़ा ऐड करूंगा, उन्होंने भी ये एक चीज कहा था कि लेकर घुमाना नहीं है किसी को। उन्होंने भी बहुत अच्छे शब्दों में, बहुत ही सरल भाषा में आपको बताया। मैं उसको थोड़ा आर्टिस्टिकली कर रहा हूं कि आप ग्रेट डिवोशन के साथ काम लेना। नहीं निभा पाओ बच्चों तो मत लेना। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे अब आपके पास कोई केस ऐसा आ गया जो आपके बस का रोग ही नहीं है, अब आपकी ऑफिस में वो काम नहीं होता। जैसे कि आपने कोई सिटी सिविल से प्रैक्टिस शुरू कर दी, अब आपके पास आ गया 302 का सेशन, अब अगला सिविल का काम करता है, अब आपके पास आ गया सेशन ट्राइबल। कोई रिश्तेदार है या कोई पहचान वाला है कि भाई अपना संबंधी वकील बने छे, आप ही दोनों शाह साहब ने, मेहता साहब ने, परीख साहब ने। ऐसा होता है, कैसा बचता है, एक्सपेरिमेंट होता है तो अगला मरेगा, ऐसा होता है। अब आप भी बड़े क्यूरियोसिटी के साथ आ गए जंबो जेट में, यस आई एम आई एडवोकेट अपियरिंग फॉर एक्यूज नंबर सो एंड सो। नहीं, सबसे पहले आप ये निभा सकते हो कि नहीं, उसको खुद की जात पे वर्कआउट करिए, वेदर इट इज जस्टिफाइड कि मैं कर पाऊंगा, मेरे बस का रोक है। क्योंकि आप सिविल लॉयर, सेशंस किया ही नहीं है, सेशन ट्राइबल चीज क्या है वो पता नहीं है, क्रॉस एग्जामिनेशन मतलब कि हार्ट बीट ऑफ द एडवोकेसी, द आर्ट ऑफ एडवोकेसी अगर वो आपको पता ही नहीं है, और आप समझ लीजिए सब चीज आपके सामने है और सबसे बड़ा जीवन और मृत्यु का सवाल है,
चाहे वो कोई भी इशू है, चाहे वो मर्डर है या कोई भी क्रिमिनल ट्रायल है, अगर नहीं कर सकते तो एक डिवोशन के साथ उसको कह दीजिए कि परीक्षा મારાથી લગભગ આ નહીં થાય, આપણે આમાં कोई मित्र साथे चाहिए, एक एक्सपर्ट की ओपिनियन ले लिए, क्या फिर आपके सर्कल में, आपके मित्र संकुल में कोई हो, उसके साथ शेयर कीजिए कि ये चीज है, ये FIR है, ये चार्ज फ्रेम हुआ है, ये चार्जशीट है, PW ये है, सीवियरिटी क्या है, डिफेंस कैसा रखेगा, लग रहा है कि वी कैन एबल टू गेट द एक्यूटेड बेनिफिट ऑफ डाउट, तो वो अगर बोलता है कि नहीं हो पाएगा, लग नहीं रहा है, वी विल टेक चांस, ठीक है, क्लाइंट को स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दीजिए कि देखिए हालात बहुत खराब है, आजमाने जैसा नहीं है, अगर आप कहते हैं तो आजमाते हैं, लेकिन एट योर कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंस, मतलब आपके जोखिम पे हम ये चीज करेंगे। तो किसी को भी अंधेरे में रखकर आप लॉन्ग रन में नहीं जा सकते। अगर आपने ले लिया, हाँ यार चलो ना यार 25,000 दे रहे हैं, अभी कौन देता है, अपने 5,000 का तो कमाई नहीं होती, उसको नहीं, ये चीज आपको आप समझ लीजिए, आप अपने अंदर एक ज्वालामुखी पाल रहे हो। कर्ज केस अगर आपने किसी के बिगाड़ दिए ना भाई साहब, तो समझ लीजिए 25 साल खड़े होने में लगेंगे, ये मेरा कैलकुलेशन है। एंड आई एम अ पर्सन राइट नाउ, मैं फिर से आपको कह दूं, मैं मेरा उदाहरण देना नहीं चाहता, लेकिन गॉड ग्रेस ऐसा है कि कुछ ऐसी चीजें मेरे एक्सपीरियंस में रही है कि मैं दूसरे के से नहीं देखता हूं, मुझे खुद ही दिखता है मेरी जात को। तो आज के समय में भी हमारा एसोसिएट जो है, शायद हम जितने केसेस लेते हैं उससे ज्यादा केसेस ना कहते आज के समय में, इन 2021, क्यों कि हमें पता है कि हम उनको कैरी ऑन करके कुछ दे नहीं पाएंगे, और कोई भी इंसान इतनी गुडविल के साथ हमारे साथ आ रहा होता है कि नहीं जाइए मितेश भाई के वहां हो जाएगा। तो आज समझिए, अगर वो मेरे को एंडोर्स करके भेज रहा है तो मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं वो लीजेसी को कंटिन्यू करूं। हमें मनी ओरिएंटेड मशीन नहीं बनना है। इफ यू हैव टू बी अ टॉप एडवोकेट, you have to get outcome in your favor, and if it can't be, then don't take chance. It is not risky, but it is a suicide. With all seriousness I am using the word suicide. आप अपने आप के साथ अन्याय नहीं कर सकते। ये फील्ड में बहुत से ऐसे चीजें हैं कि आपको पता नहीं चलेगी, बड़ा इजी गोइंग लगेगा, लेकिन आगे जाके आपको कितनी दिक्कतें दे सकता है वो आप समझ नहीं सकते। जैसा कि मैंने कहा कि डोंट मेक एनिमीज, ठीक है। और एक और चीज फिर मैं कंक्लूड कर दूंगा मेरे वेबिनार की स्पीच को, कि डोंट ओपन योर केस, क्योंकि ये अभी आपके इनिशियल स्टेजेस है, तो शायद आप ट्रायल में ही देखेंगे, लेकिन शायद गॉड ग्रेस, मैं तो चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट तक कि आप तो इवन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के काउंसल्स बने, क्वींस बेंच के काउंसल्स बने। अगर जब भी बेंच के सामने जाओ ना बच्चों, तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, कि आपको कोई ऐसा कहेगा कि आज जज जामीन नहीं है, ये जज जो हैं हमको बेल नहीं देंगे, कोई भी कहे, तो डोंट ओपन योर केस, ये बेंच कोर्ट जज इज अगेंस्ट यू, नेवर। कोर्ट को हमारे लाइन में लाना ये वकील का काम। डोंट ओपन योर केस इन द मैनर कि आप तो नहीं आते, ये तो हम प्रयोग ही कर रहे हैं। दिस इज एन एक्सपेरिमेंट, नॉट एट ऑल। This is not an experiment. You have to take your case at your shoulder. That is your responsibility, because you have assigned with the matter. Bench is not assigned with the matter. वो तो बैठा है नहीं यानी नहीं, नहीं, लेकिन नहीं को हाँ करवाना अपने को आना चाहिए। कोर्ट क्वालिटीज के ऊपर अगर हमको स्ट्रक्चर्स की बात है, तो मैं मेरे एक्सपीरियंस के साथ ये कहूंगा कि जैसे कि कार्तिकेय जी, इनकी बहुत अच्छी क्वालिटीज
मैंने देखी है, बहुत अच्छी क्वालिटी। और लॉन्ग रन में ये और भी जाएंगे और बहुत ये चीज को लेजेसी को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उनका नेचर इतना अच्छा कि वो हमेशा क्लाइंट जब आता है ना तो उसको पूरा मौका देते हैं। ही इज अ वेरी गुड लिस्टर। वो उनका माइंड या उनका नॉलेज तब तक एक्सचेंज नहीं करते, उनके थॉट्स नहीं बताते जब तक उनको पूछा नहीं। दैट इज वेरी गुड क्वालिटीज कि यू हैव टू बी अ पेशेंट लिसनर ऑल्सो। अभी आप ही लाख लाख करेंगे, शायद ये केस था मैं पढ़ लूंगा, तुम सुनो इसमें ऐसा होता है, सुप्रीम कोर्ट के ये जजमेंट है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। क्योंकि कुछ केसेस मेरे पास भी आए हैं, 302 का केस था और मेरे पास हाई कोर्ट अपील थी, सेशंस में कन्विक्शन हो गया था। अब आपको बताऊं, वो एक्यूज जो था उसको 14 दिन में यूटीपी यानी कि अंडर ट्रायल पेशनर जब जेल में होते तो 14 दिन में उनको लाया जाता है और ट्रायल चलता है। वो बेचारा जो 2.5 साल सेशंस का ट्रायल चला, उसमें वो वकील साहब जो थे उनको ये कहना चाहता था कि सर सुनिए सुनिए, तो पता वो एडवोकेट साहब जो सेशंस के थे, तुमको पता नहीं चलता, मैं निकाल दूंगा। वो बेचारा गिर गया, सर मेरे को सुनिए तो सही। अब वकील साहब जो हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस में थे, उनको ये एक पॉइंट था कि अगर 80% बर्न इंजरी है तो डायन डिक्लेरेशन इज नॉट वैलिड, दैट इज हिज प्रिजम्पटिव वैल्यू। ये उसका प्रिजम्पशन था, ये उनका अनुमान था। मैं नॉलेज नहीं कहूंगा, विद ऑल सीरियसनेस आई विल नॉट यूज द वर्ड नॉलेज, बिकॉज नॉलेज इज नेवर कीप यू इन डार्क, दिस इज प्रिजम्पशन। आज वो शख्स के कारण वो एक्यूज को लाइव कन्विक्शन हो गई। उन्होंने एक ही पॉइंट के ऊपर ब्लाइंडली क्रम कार्ड चला दिया और कोर्ट ने ये कहा कि भाई उन्होंने जब न्यूट्रल इंसानों के सामने डायन डिक्लेरेशन, डॉक्टर है, मैजिस्ट्रेट है, पुलिस वाला है, तो वो लोग एक्यूज के सामने क्यों गलत जुबानी देंगे। कन्विक्शन हो गया। कन्विक्शन होने के बाद ये देखिए थोड़ा मेरे दिल से जुड़ी हुई है मैटर, उसकी जब डॉटर आई फाइल देने के लिए और बड़ा अजीब उससे मुझसे एक रिक्वेस्ट किया, ये बोले सर मुझे आप है ना बिल लग जाए और अपील एडमिट भी हो जाए तब भी फोन नहीं करना, मैं कॉल करूंगी। मैंने उनको पूछा चालू। प्लीज घनश्याम जी आवाज बंद कर दीजिए। ऑडियो म्यूट हो गया है। वो लेडी को पूछा कि आप ऐसी रिक्वेस्ट क्यों करिए बहन, आप मानेंगे नहीं। और हो गई और उसने कहा कि सर मैं अभी एडहोक पे हूँ, प्रोबेशन पीरियड जो 6 महीने का होता है, मैं अभी बैंक में हूँ, क्लास 4 में लगी हूँ, मेरे को अभी 14,000 रुपए बेसिक्स मिल रहा है, परमानेंट होने के बाद शायद बढ़ जाएगा, पर अगर उनको ये पता चला कि मैं क्रिमिनल बैकग्राउंड से हूं तो मुझे कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में नौकरी नहीं मिली। ये एक ऐसी चीज थी जो मेरे हाथ की नहीं थी, मेरे बस का रोग नहीं था, मैं चाहकर भी मदद नहीं कर सक रहा था। अब जब हम हाईकोर्ट में आए, अब मेरे पास पूरी चीज ये थी कि मौका वारदात पर वो एक्यूज था ही नहीं। अब आपके जो एडवोकेट ट्रायल कोर्ट के थे उनको प्ली ऑफ एलाबाई, मतलब मौका वारदात पे आरोपी नहीं है, उस पर फोकस करने की जरूरत थी। आप वहां हो ही नहीं तो आपने मर्डर कैसे किया। वो एक ही पॉइंट के ऊपर ब्लाइंडली फॉलो करके प्रिजम्पटिव वैल्यू के ऊपर आप अगले की जिंदगी बर्बाद करी। अब मैं हाईकोर्ट में कोर्ट ऑफ लॉ में जब ये चीज बोल रहा हूँ, माई प्ली ऑफ एलाबाई दैट वाज बीन डिस्कार्डेड अनफॉर्चुनेटली। कोर्ट ने बोला कि यू आर गेटिंग वेरी गुड पॉइंट सर, बट this is not before the trial court, that was not been evident in any way. Where is that witness with whom you are at the time of murder? We take this matter to apex court, high court में मतलब अपील हमारा खारिज हो गया। दिल्ली गए, दिल्ली में सौभाग्य रहा कि उनको बड़ी वो बोलते निष्पक्षता के साथ हमने कह दिया कि सर ये हुआ है, 14 साल का है,
8-9 साल से ऐसा है, आप एक बेनिफिट ये दे दीजिए सर, उसको आप रेमिशन का बेनिफिट दे दीजिए। और हमने बड़ी मुश्किल से उसको जो आजीवन था उसको 12 साल में निकलवाया, लेकिन जो 12 साल का निर्दोष इंसान का संघर्ष था उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं कि जिसने एक एडवोकेट ने किसी शख्स के जाने अनजाने में वो एक्सटेंट तक बर्बाद कर दिया कि वो इरिपेरेबल लॉस था। और लास्ट में मैं ये पॉइंट ये कहूंगा कि जब भी आप एडवोकेट बने और जब भी आपका एसोसिएट हो, आप खुद का वेंचर लेके बैठे, तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, पैसा कमाना है नहीं कमाना वो अलग बात है, लेकिन अगर आपको किसी क्लाइंट की फीस नहीं आई, आपने बहुत ही जद्दोजहद से उसका केस जस्टिफाइड किया, जिता दिया, नहीं आई, तो डोंट गो फॉर इट। एक सफल वकील जो है ना, उसकी फीस का रेशो 75% ही। अगर आपको उसके अबो आता है तो आप समझ लीजिए यू आर डिस्टिंग्विश्ड एडवोकेट, आप बहुत अच्छी एडवोकेट हो। 75% अगर 100 केसेस लड़े हैं, 1 करोड़ आपका पर एनम का पैकेज रहा, मतलब आपका कैलकुलेशन 75 लाख आ गए, तो यू आर ऑन द वेरी बेटर फुट। तो डोंट गो कि वो जो 25% है ना उसके पीछे जाओगे, अरे यार उसने मेरे को 50,000 बाकी है, 1 लाख बाकी। अगर उसके पीछे आप जाओगे ना तो शायद आप आगे के और करोड़ों को नुकसान करोगे। वो जो किया वो उसके कर्म है, हम अपने कर्म के ऊपर है। जैसे कि गौरव जी ने कहा कि हम कर्म कर सकते हैं, फल की उपेक्षा नहीं कर सकते, एकदम सही है, मैं एकदम सहमत हूँ गौरव जी से। गौरव जी से भी मेरा बहुत अच्छा वेंचर रहा, आज करीबन 15 साल से हमारा वेंचर रहा। गौरव जी की आपको एक बहुत अच्छी खूबी बताऊं कि वो बहुत काइंड हार्टेड बच्चे, वो बहुत ही मतलब ट्रेड रूल्स बोलते, मतलब वो उनके रूल्स के लक्ष्मण रेखा के बियॉन्ड कभी नहीं जाते। बहुत अच्छी बात है, मॉरली बहुत ही मजबूत, एथिकली वेरी पावरफुल एंड इन एवरी सेंस इज वेरी गुड। कि मैं ये चीज नहीं करूंगा तो मितेश भाई नहीं करूंगा, इवन मितेश भाई भी जानते हैं कि गौरव जी ये काम नहीं करेंगे। तो ये क्वालिटीज हम जो हमारे जो मित्र वर्तुल है, एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, आपका सर्कल बहुत अच्छा होना चाहिए जो आपको ऊपर ले जाए। अब आप महीने में या 2 महीने में एक केस फाइल कर रहे हो और आपका सर्कल ऐसा है कि वो पान के गल्ले पर जाकर दिन में 4 घंटे बिगाड़ता है, आईपीएल की बातें करता है, तो आप कहां से अपब्रिंगिंग करोगे? यू हैव टू बी वेरी चूजी अबाउट योर सर्कल। बहुत अच्छे वकीलों के साथ जो आपको, या वकील नहीं आप मित्र, बी ए चूजी ऑफ योर फ्रेंड्स, बिकॉज नाउ when you are reaching to the age of 24 you are going to be professional। मेरे को किसी दोस्ती यारी से कोई तकलीफ नहीं है। I have various friends, various friends in every aspect, in every field, but I am very choosy। मैं चाहे आज के समय में अगर हाईकोर्ट में पीता हूं तो मेरे टेबल पे सामने या गौरव भटनागर जी होंगे या कार्तिकेय पानेरी जी होंगे, आप किसी को भी पूछ लीजिएगा कि मैं मिलूंगा अगर मेरे को स्पेयरिंग टाइम है, कि गुड टाइम स्पेयर करना हमारी मैटर एचओन होगी, अदर साइड हैज सीकन टाइम, बिकॉज जनरली वी नेवर सीक टाइम एज वी आर एंगेज फॉर कंटेस्टिंग द मैटर। तो हम लोगों की तरफ से वेल प्रिपरेशन यही होता है कि वकालतनामा के समय फाइनल हियरिंग हो जाए, कि एक का खत्म करेंगे दूसरा आएगा और शायद वही लाएगा। तो ये सब क्वालिटीज जो है वो आपको एमिनेंट बनाती है, वेल रिनाउंड बनाती है, पॉपुलर बनाती है। अब आपको बताऊं कि एमिनेंट का मतलब ही बहुत लोगों जो आज जुड़े हैं हमारे आदरणीय गरवी गुजरात से, तो एमिनेंट का मतलब अगलों को नहीं पता होगा। एमिनेंट का मतलब बच्चों ये है कि आप वेल रिनाउंड प्रसिद्ध वकील कैसे बने। तो मैंने जो कहा ये परिपूर्ण शब्द, आज का जो विषय था वो अपने आप में परिपूर्ण था, इंटरकनेक्टेड था, इंटर से था कि आप में अगर गुड क्वालिटीज हैं तो आप एमिनेंट लॉयर या एडवोकेट बनेंगे ही बनेंगे। तो ये जो मैंने गोल्डन लाइंस आपके लिए बच्चों की है। और आज देखिए सौभाग्य, हमने जब ये सोचा था मैंने और रामी सर के कि हम लोग ये डेट को वो हमारा नेशनल वेबिनार करेंगे, तो उस समय हमें को पता नहीं था कि आज मदर्स डे है। आज सौभाग्य है, आज के दिन में तमाम वर्ष दुनिया वर्ष की माताओं को पहले तो प्रणाम करूंगा, आदरणीय माताओं को पूरे विश्व की, और एक मेरी तरफ से एक छोटा सा भेंट माताजियों के लिए मैंने लिखी है। आपको उम्मीद करता हूं पसंद आएगी। कि मुस्कुराती जिंदगी
जिंदगानी चाहिए, मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की जागृत कहानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती, सारी दुनिया अपनी हो जाती, बस माँ की मेहरबानी चाहिए। तो इसके साथ में मेरा जो स्पीच है उसको विराम देता हूं और मैं एक बार फिर से सबका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, एक बहुत अच्छे श्रोता दिए और सबसे बड़ी यही उम्मीद रखता हूं कि हर एक श्रोता कुछ ना कुछ आज उनका जो वैल्यूएबल प्रेशियस टाइम लेकर हमें सुनने आए हैं तो जिंदगी में इसको अनुसरेंगे और यही मेरी ईश्वर से मनोकामना और प्रार्थना है कि आज का जो वेबिनार है सबके लिए बहुत बेहतर रहा होगा, अच्छा रहा होगा और कल उठ के हम एक अच्छी पीढ़ी के अच्छे अधिवक्ताओं को देखेंगे, मिलेंगे तो उस समय मेरा सौभाग्य रहेगा कि मुझे एक अच्छे अधिवक्ताओं से मिलना का